Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is data handling. Learning objectives: to read circle graphs and line graphs, to record data using telemarks. Now tune up. The word data is derived from the Greek word datum. By data we mean useful information. We keep using and generating data almost all the time. The phone book in our mobile, the map of metro rail, road signs, etc. are all various forms of data. In previous class, we had learnt about data. We represented data using bar graphs, etc. Now we shall learn more about data. Let's start. Circle graph or pie chart. Circle graph or pie chart shows the component part of a whole. A pie chart is represented in a circle with various sectors. The bigger the sector, the larger quantity it shows. This type of chart is a circle divided into a series of sectors. Each sector represents a particular category. Example करते हैं. The pie chart shows preferences of students of their favorite drink at breakfast. तो ये हमें given है. Tea 9%, orange juice 21%, milk 47% and health drink 23%. Accordingly, इसको सर्कल में ड्रॉ किया है. Now A. What percentage of the students prefer health drinks for breakfast? Health drinks कितने हैं? 23%. तो 23% is the answer. Now B. If the school has 100 students, how many students drink milk for breakfast? That is 47%. Means 100 में से 47. That means 47. Now next. What percent of students like orange juice for breakfast? That is 21%. Next. Which is the most popular drink for breakfast? सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? मिल्क की. तो मिल्क is the favorite. Now next E part. Which is the least popular drink for breakfast? सबसे कम क्या है? 9% tea. So tea is the answer. Now next, practice time 20.1. Question number 1. Read the preference of people for their favorite type of movies. Answer the questions that follows. तो यहाँ पे परसेंटेज गिवन है. कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, साइंस फिक्शन एंड हॉरर मूवीज एंड फॉरेन मूवीज. तो क्वेश्चन ए. व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक साइंस फिक्शन? साइंस फिक्शन कितना है? कलर देखो साइंस फिक्शन का क्या है. तो इस फिक्शन में हमारा कितना है? 14%. तो यहाँ पे हमारा लिखेंगे हम 14%. नाउ बी. विच टाइप ऑफ मूवी इज लाइक द मोस्ट? सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? दैट इज 27%. 27% हमारा किसका है? फॉरेन मूवीज का. दैट इज फॉरेन. नाउ सी पार्ट. विच टाइप ऑफ मूवी इज लाइक्ड मोर, एक्शन और ड्रामा? एक्शन और ड्रामा. एक्शन मूवी आपका कलर है 8%, एक्शन मूवीज 8% एंड ड्रामा. ड्रामा आपका है येलो, दैट इज 14%. ये आपका ड्रामा है. तो कौन सा ज़्यादा पसंद करते हैं? ड्रामा. नाउ डी. Two types of movies are liked by equal percentage of people. There are two such combinations. Name them. तो 2% कौन कौन सी हैं? एक तो हमारा 14% जो हमारा ड्रामा है और एक आपका साइंस फिक्शन. तो ये हमारा है, एक है आपका ड्रामा एंड साइंस फिक्शन एंड दूसरा 8% आपका क्या है? 8% आपका क्या है? यहाँ पे एक्शन एंड अनदर वन इज रोमांस. एक्शन एंड रोमांस. नाउ नेक्स्ट ई पार्ट. विच टू टाइप्स ऑफ मूवीज कंबाइंड टुगेदर वुड फॉर्म ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मूवीज? कौन सी दो मिलकर हाफ कर रही हैं? कौन सी दो ऑलमोस्ट हाफ कर रही हैं? आपकी 27 एंड 18% मिलकर दोनों हाफ कर रही हैं ऑलमोस्ट, ये दोनों. तो 27% आपकी फॉरेन मूवीज़ हैं. तो इसमें आपका है, एक है फॉरेन
एंड 18% आपका क्या है, हॉरर। तो दीज टू मूवीज मिलकर ऑलमोस्ट हाफ को कवर कर रही हैं। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ। The number of students in different years since the school began in 2012 is listed below. This data is recorded in a line graph by putting a dot on the chart every year after the admissions are completed. यहाँ पे ईयर गिवन है तो ये हमारा ग्राफ है, ईयर हमने लिखा है नीचे एक्स एक्सिस पे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिखा है वाई एक्सिस पे। तो 2012 में कितना है 50, तो 50 के अकॉर्डिंग यहाँ लाइन ग्राफ बनाया गया है। देन 2013 में आपके कितना है 200, तो 200 पे आपने मार्क किया है। देन 350, तो इस तरह से ये हमने अकॉर्डिंगली लाइन ग्राफ बनाया है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द लाइन ग्राफ। ए, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन द स्कूल बिगेन। जब स्कूल स्टार्ट हुआ 2012 में तो कितने स्टूडेंट्स थे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए इज 50। नाउ बी, What was the number of students in the year 2017? 2017 में कितने हैं 500, तो B का आंसर है 500। Now C, how many students joined in the year 2013? 2013 में कितने बच्चों ने ज्वाइन किया 2012 में, तो C का सॉल्यूशन 2012 में 50 थे, 2013 में कितने हो गए 200, तो 50 उसमें से माइनस कर देते हैं। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड इन 2013 इज 200 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 150। नाउ डी क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीच 450। कौन सी ईयर में 450 बच्चे पहुंच गए हैं, दैट इज 2016। तो डी का आंसर है 2016। नाउ ई, how many more students are there in 2018 than in the year 2015? तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो 2018 में कितने स्टूडेंट्स हैं 600 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2015 में कितने हैं 400। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड इन 2018 कितना है 600 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 200। सो देयर आर 200 स्टूडेंट्स मोर इन द ईयर 2018 देन इन द ईयर 2015। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम 20.2। Vishal was sitting in his balcony and watching the vehicles go by. He made a note of the number of vehicles that passed by after every 5 minutes for an hour. Based on the data, he made the following line graph. तो 0 से स्टार्ट किया और 5 मिनट का गैप करके 1 घंटे तक किया तो 60 तक गया और यहाँ पे उसने नंबर ऑफ व्हीकल्स लिखे एक्स एक्सिस पे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन डिड 16 व्हीकल्स पास बाय। कब 16 व्हीकल्स पास हुए थे, तो देखो 16 का कॉलम कहाँ बनेगा 15 के बाद आपके नंबर ऑफ व्हीकल्स कहाँ है 16 हमारे यहाँ पे है, तो ये किस टाइम पे गए यहाँ पे हमारा 15 मिनट्स पे। कौन से पे गए 15 मिनट्स पे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी व्हीकल्स हैड पास्ड बाय द एंड ऑफ 20 मिनट्स। 20 मिनट्स टाइम कहाँ पे है यहाँ पे 15 एंड 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के ग्राफ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो कितने व्हीकल्स आए, तो 20 मिनट्स के ग्राफ पे हम देखेंगे तो 20 व्हीकल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मोर व्हीकल्स हैड पास्ड बाय द एंड ऑफ 60 मिनट्स कंपेयर टू 40 मिनट्स। 40 मिनट्स पे देखो कितना है, ये हमारा कितना है 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स पे हमारे कितने गए हैं, दैट इज 40 मिनट्स पे गए हैं 32 और 60 मिनट्स पे हमारे कितने गए हैं 60 मिनट्स पे गए हैं हमारे 40। तो 40 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 8। तो 60 मिनट्स कंपेयर टू 40 मिनट्स पे 8 व्हीकल्स, तो इसका आंसर हमारा कितना है 8 व्हीकल्स ज़्यादा पास हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द 40 व्हीकल्स पास बाय। 40 व्हीकल्स कब पास हुए 60 मिनट्स पे। 60 मिनट्स पे। नाउ टेलीमार्क्स। Telemarks are
an easy way of counting objects in group of 5. The first 4 tally marks are represented as vertical lines and the fifth line is a diagonal line across the 4 tally marks. Each tally mark stands for 1. जैसे 1, 2, 3, 4 and 5. एग्जाम्पल करते हैं. Anuj's mother made a list of items to be bought for Anuj's birthday party. Represent the following data using tally marks. आइटम्स दे रखे हैं यहाँ पे बर्थडे कैप, पेस्ट्री, समोसा, चॉकलेट एंड कैंडी. नंबर ऑफ आइटम्स इज 12, 15, 20, 30 एंड 25. सॉल्यूशन करते हैं. आइटम्स एंड टेली मार्क्स. बर्थडे कैप्स कितनी है? 12. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. पेस्ट्री कितनी है आपकी? 15. तो 3 टाइम्स हमने 5, 5, 5 को रिप्रेजेंट किया है. समोसा कितना है? 20. तो 4 टाइम्स हमने 5 को रिप्रेजेंट किया है. चॉकलेट्स कितनी है? 30. तो 6 टाइम्स हमने 5 को रिप्रेजेंट किया है. कैंडी कितनी है? 25. तो 5 टाइम्स हमने 5 को रिप्रेजेंट किया है. नाउ प्रैक्टिस टाइम 20.3. क्वेश्चन नंबर 1. रौनक bought 25 kiwis, 18 pineapples, 23 watermelons and 16 grapes. Help him to represent the data using tally marks. तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? फ्रूट्स और यहाँ पे लिखेंगे tally marks. इस तरह से टेबल बनाएंगे. तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है? फर्स्ट नंबर पे है कीवी. कीवी कितनी है? 25. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. कीवी हो गया 25. नाउ सेकेंड इज पाइनएप्पल. पाइन एप्पल that is 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Now next, third है आपका watermelons. watermelons कितने हैं? 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Now next is grapes. Grapes कितने हैं? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो सेम मैथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मैथ लैब एक्टिविटी. Aim to record data using tally marks. Materials required: a dice. Procedure: number 1, students should work in group. Second, take turns to throw the dice. Each one of you should throw the dice 5 times. Third, each time you throw the dice, record the number that you see on the dice using tally marks. Fourth, complete the table. तो इस तरह से आप टैली मार्क्स यहाँ पे बनाएंगे और नंबर ऑफ टाइम्स. तो जितनी बार आप डाइस को क्या करेंगे? थ्रो करेंगे, मार्क्स को ऐड करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में. तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में अपनी क्लास टीचर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं. तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.